So now let us start with the different parts of the flower one by one, and we are going to start with the outermost wall of the flower. And the outermost wall of the flower is the calyx. Calyx is the outermost wall of the flower. Is the outermost wall. It is known as wall because the different parts of the flower arranged in a ring-like structure. So it is known as wall. And calyx means the outermost wall, and the individual member of the calyx is known as sepals. Means the different number of sepals combinedly known as the calyx. उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं. और ये कैलिक्स जो है नॉर्मली किस कलर के होते हैं? द जनरली दे आर ग्रीन इन कलर. ओके, दे आर जनरली ग्रीन इन कलर. बात करते हैं इसके फंक्शन की. फंक्शन जो होता है कैलिक्स का आउटरमोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर play an important role in photosynthesis. Due to the presence of green color pigment, that is chloroplast, calyx is responsible for photosynthesis as well as protection. It protects flower in wet condition. When the flower present in the plant's body in wet condition or in the early stage of flower, फ्लावर का जो अर्ली स्टेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं. और उस अर्ली स्टेज में फ्लावर के अंदर वाले पार्ट मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये कैलिक्स ही करते हैं. तो दो मेन रोल है, पहला फोटोसिंथेसिस, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर इन वट कंडीशन. And they are green in color. Green color leafy appearance होता है. इनका जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिससे ये फ्लावर के मेन पार्ट से अटैच्ड होते हैं. नेक्स्ट द सेकेंड outermost wall is the corolla. And corolla is the second outermost. And the individual member is known as petal. And these are the green leafy structure. ये जो है green leafy structure बनाने का काम करते हैं. And they are not green, colorful leafy structure. और ये जो है green color. पेटल्स जो है ग्रीन के अलावा जितने भी अदर कलर होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं. और इनका अगर फंक्शन की बात किया जाए सो मेन फंक्शन ऑफ द पेटल इट इज द प्रोटेक्शन इन अर्ली स्टेज एंड पॉलिनेशन. As they are bright color, different color, the petals are responsible to attract the insect towards themselves. Okay, अपनी तरफ जो है इंसेक्ट को आकर्षित करते हैं. And when these insect come and stick to the flower, the process of pollination take place. Means they help in pollination. Pollination क्या होता है अभी आगे इसके आगे आपको बताया जाएगा. इन बात करते हैं आपका जो है थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर दैट इज नोन एज एंड्रोइसियम. And the endoecium is the second innermost wall. And the individual member is known as
individual member is known as stamen. Means endoecium is combined structure which is individually made up of a number of stamen. बहुत सारे stamen जो आपस में मिलकर के endoecium बनाने का काम करते हैं. And it reflects the male reproductive organ. ये जो है male reproductive organ को represent करता है. It is the male reproductive organ. Okay. In flower or in any reproductive structure, there are two types of reproductive organ: male reproductive organ and female reproductive organ. So, endoecium reflects the male reproductive organ of the flower. Flower का ही male reproductive organ बनाता है. And the parts, stamen में कौन कौन से parts पाए जाते हैं? So, stamen is made up of two parts, that is filament or stalk-like structure, filament and plus anther. Okay, and when we part all the structure of stamen, we can find out a tip of the stamen is the anther, while the anther is remain connected to the flower with a thread-like filamentous structure. It is known as the filament. Filament and anther, these two components together form the stamen. ये दोनों मिलकर के जो है stamen बनाने का काम करते हैं. ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? stamen है. And anther may be bilobed or monolobe. Okay, means anther में जो है लोब या उसी को हम बोलते हैं थीका. तो लोब या थीका के बेस पर एंथर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या स्टेमेन दो तरह के होते हैं. एक जो है मोनोथीकस होता है और एक डाइथीकस होता है. मोनोथीकस जो है बहुत ज़्यादा प्लांट में नहीं पाया जाता है, कुछ ही प्लांट में पाया जाता है. लाइक मालवेसी फैमिली के प्लांट जो हिबिस्कस का प्लांट होता है उसमें मोनोथीकस एंथर पाया जाता है. बट उसके अलावा जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उन सब में डाइथीकस एंथर पाया जाता है. मीन्स दो लोग पाए जाते हैं एंथर में. एंड एंथर इज द प्लेस where pollen grain form. Okay. In the structure of stamen, anther is the place where the formation of pollen grain take place. Pollen grain जहाँ पे बनता है वो एंथर ही होता है. एंथर के अंदर ही pollen grain का फॉर्मेशन होता है. And the pollen grain is the structure which carry pollen grain होता है वो कैरी करता है मेल गैमेट. पॉलन ग्रेन कैरी मेल गैमेट. पॉलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेट कैरी करता है. पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर की बात अगर किया जाए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. तो पॉलन ग्रेन के पास सेल वॉल के अलावा दो एडिशनल जो है वॉल पाया जाता है. और एडिशनल वॉल में जो इनर वॉल होता है वो स्मूथ वॉल होता है. इसको हम बोलते हैं इनलाइन. और उसके ऊपर एक रफ वॉल पाया जाता है. रफ वॉल above the incline it is known as exine. And inside the pollen grain, before pollination, the pollen grain form inside the anther. Before pollination, in most of the cases, there are two nucleus or two cells. एक पॉलन ग्रेन में जो है दो सेल्स पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. वन इज द जनरेटिव सेल एंड द सेकेंड इज द वेजिटेटिव सेल. ये बड़ा वाला जो सेल होता है ये वेजिटेटिव सेल कहलाता है. वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर वन इज नोन एज जनरेटिव सेल. सो बिफोर पॉलिनेशन, or we can say that pollination take place especially or in most of the cases in two celled stage pollen grain. pollen grain जो है दो celled stage रहता है pollination जब करना होता है. एक आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सेंट्रोसियम. द नेक्स्ट one of the flower is the gynoecium, that is the innermost one.
gynoecium, and the individual member of gynoecium is the carpel or pistil. A number of carpel or pistil, they are together known as gynoecium. कार्पेल और पिस्टिल जो नंबर ऑफ पाए जाते हैं प्लांट्स में, फ्लावर्स में, वो सभी मिलकर के, सभी कार्पेल और पिस्टिल मिलकर के बनाते हैं गाइनोइशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिफ्लेक्ट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कार्पेल और पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट. ये जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट इसमें पाया जाता है. अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, इसमें आपको बताया गया था कि 3 पार्ट में जो है सबसे लोअर जो सर्वे पार्ट होता है वो होता है ओवरी, और स्टाइल जो है ट्यूब लाइक स्टाइल पाया जाता है जो स्टिग्मा को कनेक्ट करता है, और ये जो है स्टिग्मा सबसे ऊपर पाया जाता है. तो तीनों का अगर फंक्शन की बात किया जाए तो ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल होता है, एंड इनसाइड द ओव्यूल द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट टेक प्लेस. ओव्यूल के अंदर जो है फीमेल गैमेट बनता है. फीमेल गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस इनसाइड द ओव्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस प्रोसेस से जो है ये होता है. और स्टाइल जो होता है वो स्टिग्मा को कनेक्ट करता है ओवरी से. कनेक्ट स्टिग्मा टू स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा टू ओवरी. ओवरी रिमेन कनेक्टेड टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ स्टाइल. अब यहाँ पे बात आती है कि स्टिग्मा की क्या जरूरत होती है ओवरी से. तो देखिए ओवरी के लिए जो है स्टिग्मा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्टिग्मा प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग ऑफ pollen grain. Okay, stigma provide a platform for landing of pollen grain after pollination. Okay, जैसे आपका जो है एरोप्लेन जो चलते हैं, तो एरोप्लेन के लिए जो है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं आप जो है हवाई अड्डा जिसको बोलते हैं. ओके, तो उसी तरह से स्टिग्मा भी जो है ये प्लेटफॉर्म का काम करता है. ओके, एरोप्लेन प्लेटफॉर्म इसको हम बोल सकते हैं. तो ये जो है पॉलन ग्रेन का प्लेटफॉर्म का काम करता है स्टिग्मा. इसलिए स्टिग्मा जो है ओवरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, स्टाइल करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन डिटेल. एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ फ्लावर. Types of the flower. Okay. So on the basis of the presence or absence of the essential word of the flower, essential word of the flower जो होते हैं, that is stamen in the case of male reproductive organ, stamen as male reproductive organ, एंड कार्पेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये दोनों जो है इसेंशियल वॉल ऑफ द फ्लावर कहलाते हैं. तो इसेंशियल वॉल ऑफ द फ्लावर के बेस पर ये कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पर ये जो है टाइप्स को डिवाइड किया गया. तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है फ्लावर. फर्स्ट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और इट इज आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर. इनकम्प्लीट फ्लावर, तो ऐसे फ्लावर जिसमें आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट. ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैन बी डिफाइंड एज द फ्लावर इन विच आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट. That kind of flower is known as incomplete flower. Means दोनों essential word of the flower में से कोई एक अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और उसी को हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोल सकते हैं. ओके, अब देखिए यूनिसेक्सुअल में जो है 2 कैटेगरी होगा. अगर ये फ्लावर जो है मेल
मेल फ्लावर है, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी कर रहा है केवल, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं स्टेमिनोड। स्टेमिनोड फ्लावर, ऐसे फ्लावर में स्टेमिनोड फ्लावर जाते हैं। While the flower containing only female reproductive organ, that flower is known as pistillate flower. Pistillate flower. Okay. So staminode and pistillate ये दो तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बेस पर जो प्लांट्स होते हैं वह दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। प्लांट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए फ्लावर जो है प्लांट, ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनता है, बट दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर दैट इज मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। ओके, तो मोनोसियस प्लांट में जो है बोथ मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, बोथ फ्लावर आर प्रेजेंट। दैट काइंड ऑफ प्लांट इज नोन एज मोनोसियस प्लांट। ओके, while the second category is the dioecious। और डायोसियस प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में आइदर मेल और फीमेल होता है, आइदर और द फ्लावर मीन्स या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा एक प्लांट में। तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे डायोसियस प्लांट। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बेस पर ही डिवाइड किया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मोनोसियस का एग्जाम्पल आप देखेंगे इन द केस ऑफ कुकुम्बर। कुकुम्बर जो प्लांट होता है इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, अलग अलग प्लांट में नहीं पाए जाते। बट इसका डायोसियस का एग्जाम्पल आप देखेंगे पपाया। पपाया जो पपीता का पेड़ होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मेल फ्लावर जो है मेल प्लांट में होता है और फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट में होता है। इसीलिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है बाय द नर्सरी में जो होते हैं प्लांट को सेल करते हैं, ऐसे लोग सजेस्ट करते हैं टू प्लांट टू प्लांट्स टुगेदर। ओके, प्लांट पपाया का प्लांट जो होता है तो एक साथ दो प्लांट लगाना होता है। तो ये किसकी वजह से टू डील विद द सिचुएशन दैट इज डायोसियस सिचुएशन को डील करने के लिए ऐसा होता है, क्योंकि दो प्लांट रहेंगे तभी जो है इनमें पॉलिनेशन पॉसिबल होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो ऐसे में पॉलिनेशन पॉसिबल होगा और पॉलिनेशन होगा तभी जो है इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। अभी जो है आगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द फ्लावर दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर और इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर या नोन एज कंप्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर इसलिए बोला जाता है बिकॉज बोथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में जब दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मीन्स स्टेमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मीन्स कार्पेल और पिस्टिल, ये दोनों जो है एक ही फ्लावर में रहेंगे तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर उसी को हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे हिबिस्कस में, हिबिस्कस, रोज, ये सारे प्लांट जो है आपके सामने दिखाई देंगे तो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही होंगे। इसका स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो किसी भी फ्लावर को
प्लग करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं दैट द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, उसको आप देख करके बता सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ reproductive organ, that is male or